Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. Students, I welcome you all in my 18th video lecture. This is the fourth and the last part of this chapter. The chapter is the Delhi Sultans. So, let's start it. Student, in my last video, I told you about that how Timur invaded Delhi. And that time the ruler was Firoz Shah Tughlaq. He defeated him and controlled over Delhi. After that, the Sayyid dynasty took place. Khizr Khan was the first Sayyid ruler. He was appointed by the Timur to look after his conquered territory. The Sayyid dynasty rules for a short period of time. There were four Sayyid Sultans: Khizr Khan Sayyid, मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद एंड अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। तो दिल्ली को जीतने के बाद तिमूर ने वहां पर खिज्र खान सैयद को अपॉइंट कर दिया, उसे उस टेरिटरी को देखभाल करने के लिए। हालांकि जो ये सैयद डायनेस्टी थी इसने काफी कम समय वहां पर रूल किया। Khizr Khan Sayyid, he ruled between 1414 to 1421. Khizr Khan was the governor of Multan during the reign of Firoz Shah Tughlaq, but he joined Taimur when he attacked India in 1398. After Taimur caused havoc and ruined Delhi, the political condition was not stable. Timur left India by appointing Khizr Khan as governor of Multan, Lahore and Depalapur. In 1414, Khizr Khan conquered Delhi and established the rule of Sayyid dynasty. तो बच्चों, खिज़्र कहाँ फिरोज शाह तुगलक के वक्त मुल्तान के गवर्नर था, लेकिन उसने तैमूर ने जब दिल्ली पर अटैक किया तो उसने तैमूर को ज्वाइन कर लिया। तैमूर ने दिल्ली को बुरी तरह बर्बाद किया, उसे लूटा और उसके बाद वह अपने देश वापस लौट गया, लेकिन जाने से पहले उसने खिज़्र कहाँ को वहाँ का गवर्नर बना दिया। इसके साथ साथ उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर भी कंट्रोल करने को दिए। 1414 में खिज़्र खान ने दिल्ली को वापस जीता और इस तरह सैयद डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड हुई। Mubarak Shah Sayyid, he ruled between 1421 to 1434. Khizr Khan was succeeded by his son Mubarak Shah. He was a man of refined taste, with a futuristic vision and believed in reviving the old glory of Sultanate. The nobles, however, were not in his favor. A major part of his rule was spent in controlling them. After him, Muhammad Shah Sayyid sat on throne. He ruled between 1421 to 1434. Muhammad Shah succeeded his uncle Mubarak Shah. During his rule, nobles became very strong and powerful. तो बच्चों, खिज़्र खां के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। ये जो मुबारक शाह था वह एक अलग अंदाज वाला इंसान था। वह चाहता था कि दिल्ली को वापस की ग्लोरी मिल जाए, यानी जिस तरह पास में दिल्ली ग्लोरीफाइड टाउन था, ठीक उस तरह वे दोबारा ग्लोरीफाइड हो जाए। लेकिन उसके नोबल उसके इस फैसले के हक में नहीं थे, तो उसके टेन्योर का काफ़ी वक्त उन्हीं को कंट्रोल करने में, यानी उसके नोबल्स को कंट्रोल करने में चला गया। उनके बाद मोहम्मद शाह सैयद ने इस सत्ता की कमान संभाली, जो कि मुबारक शाह सैयद का भतीजा था। उसके साम्राज्य में भी नोबल्स अधिक पावरफुल थे। द नेक्स्ट सुल्तान इज अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। ही रूल्ड बिटवीन 1443 to 1451. Alam Shah became the Sultan after Muhammad Shah. In 1451, he was defeated by the Bahlol Lodi. After this incident, the short rule of Sayyid Sultan came to an end. तो बच्चों, मोहम्मद शाह सैयद के बाद जो अगला शासक गद्दी पर आसीन हुआ वो था अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। हालांकि इसका जो भी रूलिंग टाइम था काफ़ी कम रहा, जिसे बहलोल लोदी ने हरा दिया। ये वो वक्त था कि जब जो सैयद वंश था बिल्कुल अपने पतन पर आ चुका था और इसके बाद से सत्ता लोदी वंश के हाथ में चली गई। द लोदी डायनेस्टी। The Lodi dynasty saw the end of Turkish rule and the beginning of rule of Afghans. Bahlol Lodi. He ruled between 1451 to 1489. Bahlol Lodi was the first Afghan Lodi ruler. He tried to consolidate the divided sultanate. He took stern step and removed rebellious governors and appointed loyal Afghans nobles in their place. At the time of his death, the sultanate stretched from Punjab to Bihar. बच्चों, लोधी डायनेस्टी का जो पहला रूलर था वो था अफगान। बच्चों, तो जो लोधी डायनेस्टी का पहला रूलर था वो था बहलोल लोदी। उसने सत्ता पर बैठने के बाद अपनी सल्तनत को वापस कंट्रोल करना चाहा। इसके लिए उसने कई सारे कदम उठाए और रेबेलियस गवर्नर जो थे, यानी वो गवर्नर जो उसके अगेंस्ट थे, उनकी पोस्ट से हटाया और उनकी जगह जो उसके लॉयल यानी विश्वसनीय अफगान थे उन्हें उनकी जगह गवर्नर बनाया। उसके वक्त उसकी सल्तनत का विस्तार पंजाब से लेकर बिहार तक हो चुका था। सिकंदर लोदी, who ruled between 1489 to 1517. Sikandar Lodi was the son of Bahlol Lodi. He was the most powerful ruler of the Lodi dynasty. Sikandar Lodi took over Jaunpur and Bihar and also signed a treaty of friendship with the ruler of Bengal. He was a reformer too and introduced many public welfare measures like providing loans to farmers, lowering prices, etc. The city of Agra was founded by him. Agra became his capital. So students, सिकंदर लोदी जो कि बहलोल लोदी के बाद गद्दी पर बैठा, बहलोल लोदी का बेटा था। कहा जाता है कि वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था।
उसने जल्द ही जौनपुर और बिहार के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसने बंगाल के रूलर से एक संधि भी की। वह एक अच्छा राजा था और लोगों की भलाई के लिए उसने कुछ नई नई पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट किया। उसने किसानों को लोन दिया और जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं थी उनके प्राइस कम किए, जिससे कि उसके साम्राज्य में लोग अच्छे से रह पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ। उसी ने आगरा शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। Ibrahim Lodi, that was the last ruler of Lodi dynasty. He ruled between 1517 to 1526. Ibrahim Lodi succeeded Sikandar Lodi. He had to initially struggle against the Afghan nobles who rebelled against him, but eventually he defeated them. To prevent such revolts in future, he replaced senior nobles and governors. These nobles and governors were very powerful. The younger nobles took their place. तो बच्चों, लोदी वंश का आखिरी शासक रहा इब्राहिम लोदी, जिसने 1517 से लेकर 1526 तक रूल किया। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बाद शासक बना था। जब वह सत्ता में आया तो उसे भी खुद को वहाँ पर स्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जो अफगान नॉबल्स थे वो नहीं चाहते थे कि वे राजा बने, पर वे उन्हें हराने में सफल रहा। आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए उसने क्या किया, ही रिप्लेस सीनियर नॉबल्स। तो जो पुराने सीनियर नॉबल्स और गवर्नर्स उन्हें रिप्लेस कर दिया। हालांकि ये नॉबल्स और गवर्नर्स काफ़ी पावरफुल थे, इनकी जगह यंगर नॉबल्स यानी नए नॉबल्स को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया। Displaced nobles were not happy by his decision, so they conspired against him with Babur, and Ibrahim Lodi fought the first battle of Panipat in 1526. Ibrahim Lodi was defeated and overthrown. Thus, the rule of glorious Sultanate came to an end. This paved the way for the foundation of Mughal dynasty. तो बच्चों, वो नॉबल्स जिन्हें इब्राहिम लोदी ने उनकी पोस्ट से हटा दिया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट ही षड्यंत्र रच दिया, यानी कॉन्स्पिरेसी की, और बाबर से मिलकर उसे इनवाइट किया बाबर को कि वो आए और इब्राहिम लोदी से फाइट करे। तो इसके चलते बाबर और इब्राहिम लोदी की पहली फाइट हुई पानीपत में 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा गया। परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट द रूल्स ऑफ ग्लोरियस सल्तनत केम टू एन एंड, यानी जो ये दिल्ली सल्तनत या उसका ये लास्ट वंश जो था लोदी वंश, जो ये साम्राज्य चलता रहा था, इसका अंत हुआ। और इसी के साथ एक यह नई वंश की शुरुआत हुई जिसका नाम था मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। So student, finally we are done with this chapter. We have talked about the 5 dynasties, their kings and their kingdoms, their policies and the programs they executed to rule over their territories. Now we are done with this chapter. Thank you. Have a good time. Bye.